Har Har Mahadev. Very good evening and very warm welcome to yet another day of magical practices. And today we are going to read this lesson from this beautiful book, The Magic. और इसका जो lesson हम आज day 8 करने जा रहे हैं वो है The Magical Ingredient. So as we've decided that I will be making two videos, one for the summary of the lesson and another one for the magical practice. तो आज की ये मैजिकल प्रैक्टिस और ये समरी हमारे लिए क्या कहती है इसको हम डिस्कवर करेंगे. आई हैव मेड नोट्स फॉर ऑल ऑफ यू सो दैट वी डोंट मिस आउट ऑन एनी पॉइंटर्स. बट बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू स्टार्ट विद अ लिटिल प्रेयर बिकॉज आज का जो magical practice here is for food and water, and we are already doing that practice ever since we started. So let's fold our hands together with a smile on our face. Let's focus our energies. Breathe in deep. Thank you, God, for the food we eat. Thank you, God, for the world so sweet. Thank you, God, for the birds that sing. Thank you, God, for everything. Thank you, God, for everything. So, my dear friends, here we are on this day 8 and the topic is the magic ingredient. क्या है ये magic ingredient और हम क्यों इसको प्रैक्टिस हमें करना बहुत ज़रूरी है. बट इसके पहले आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी करेंगे which is like you have to close your eyes, focus on the base of the spine. So imagine that roots are growing deep from the base of the spine into your legs, passing through the legs into your toes and going into Mother Earth. Feel your feet on the ground and imagine that these roots that are growing are traveling towards the core of Mother Gaia, Mother Earth, which has a nurturing energy and is simultaneously absorbing all the negativity, ungroundedness, anxiety, stress and tension. Whatever is holding you back is being absorbed by Mother Earth, grounding you with its nurturing energy. Mother Earth is filling up your body with a fluid that's healing your aura. Golden colored or green colored grounding energy is traveling up, entering your toes and feet, into your legs and base of the spine, filling up the rest of the body through the back, the spine, all important and significant organs, big and small, through your hands, neck, all glands, your heart chakra and other chakras, your face and your brain and mind. Coming out of your crown chakra, now the fluid surrounds you like a protective aura, tugging you and hugging you tight and grounding your energies, forming a bubble around your aura, which will only allow positive vibrations to enter and automatically cleanse the negative vibrations that come close to you or that you have been holding.
And so it is. Amen. Har Har Mahadev. Now we are going to start with the summary of this lesson, which is the magical ingredient. तो हम लोग बहुत बार, जैसे कि मैंने बताया, ऐसी चीज़ों को होल्ड करते हैं जिनके लिए हम कोई ग्रैटिट्यूड नहीं रखते. फॉर एग्जाम्पल, खाना और पीना, पानी पीना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट हम लोग क्या करते हैं, एक ऑटोमेटेड जोन में खाने को खाते हैं और पानी को जब प्यास लगी बॉटल भर के पानी पी गए, ग्लास भर के पानी पी गए, बट एक दिन में एक बार भी शायद थैंक यू नहीं बोलते. सो टुडेज मैजिकल इंग्रेडिएंट लेसन इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ food and water. So we have to give thanks to the food and water that we eat or drink respectively. Simple act of being grateful for the food we eat and the water that we drink increases the magic in our lives exponentially. कितनी बार हम दिन में कुछ ना कुछ मंच करते हैं, कितनी बार हम पानी पीते हैं, बट हम कभी भी थैंक यू नहीं बोलते. लेकिन जब हम फूड एंड वाटर को ब्लेस करके पानी पीते हैं या खाना खाते हैं, तो वो मैजिकल वर्ड्स की पावर कई गुना बढ़ जाती है हमारी बॉडी के अंदर. थैंक यू अपने आप में ही एक बहुत हाई वाइब्रेशनल वर्ड है, लेकिन जब हम थैंक यू बोलते हैं और हम खाने को ब्लेस करते हैं या अपने पानी को ब्लेस करते हैं, वही एनर्जी हमारे अंदर एब्जॉर्ब होती है और हमारे वेलबींग की तरफ बहुत बड़े तरीके से कंट्रीब्यूट करती है. आपने कभी सोचा है कि जब आपको भूख लगती है, व्हेन यू फील हंग्री, हाउ डू यू फील? यू सडनली फील लॉस ऑफ एनर्जी, एज इफ योर शुगर लेवल्स आर ड्रॉपिंग, एज इफ यू आर एग्जॉस्टेड, यू गेट इरिटेटेड. अगर ज़्यादा देर तक आप भूखे रह जाओ, कुछ लोगों को गुस्सा आना शुरू होता है. एंड 100% आई एम श्योर आपका दिमाग भी उस टाइम में पूरा काम नहीं करता. यू आर नॉट क्लियर अबाउट योर थॉट्स. योर थॉट प्रोसेस गेट्स फिजी and fogged. So this is the importance of food. और जैसे ही आप खाना खा लेते हो and your hunger gets satiated, you feel full, you feel happy, you feel as if yes, you have the power to deal with various things that were going on during the day once your stomach is full, because you receive the energy that you need for your day to go on, your life processes to go on. आपके लाइफ प्रोसेसेस, आपकी बॉडी अच्छी तरह से फंक्शन कर पाती है टू इट्स ऑप्टिमम लेवल. कहते हैं ना, भूखे पेट ना होए भजन गोपाला. तो भूखे पेट तो भगवान का भजन भी नहीं हो सकता. आप जब दर्शन करने जाते हो कहीं पे भी, या जगन्नाथपुरी में टू बी मोर स्पेसिफिक, वहाँ पहले आपको भोजन कराया जाता है और फिर आपको दर्शन कराए जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि पहले पेट भर के खाओ और उसके बाद भगवान का भजन और पूजन करो. तो इस तरह से हमें याद रखना चाहिए कि खाना और पीना, पानी हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है उसके लिए ग्रैटिट्यूड इफ़ेक्ट अपनी लाइफ में लेके आना. हमारा जो खाना है, हमारा जो फूड है, इट इज़ नीडेड बाय अस टू फील गुड, टू फील फुल, टू फील एनर्जेटिक फॉर आवर लाइफ, to function properly, for various organs in our body to function properly, for nutrition absorption, ताकि सब कुछ अच्छे से काम कर पाए, है ना, so that we remain productive throughout the day. So therefore, to be grateful for the food we eat and the water we drink, we have to be very mindful कि जब हम खाना खाएं, अच्छे मन से खाएं और ग्रेटफुल होके खाएं. आपने देखा पहले ज़माने के लोग जब भी खाते थे, या पंडित जी अभी भी घर में आते हैं, तो वो पहले मंत्र उच्चारण करते हैं, दे ब्लेस देयर फूड एंड देन दे कंज्यूम. लेकिन हम लोग हार्डली टेबल पे खाना रखते हैं और खाना पीना शुरू, वहीं पे लड़ते हैं, झगड़ते हैं उसी टेबल पे. एक अजीब सी वाइब्रेशन कई बार क्रिएट हो जाती है. बिजनेस डिस्कशंस चल रही होती हैं, कुछ अजीब अजीब सी डिस्कशंस, समथिंग एज इफ दे कॉल इट अ फैमिली टाइम, कि फैमिली डिस्कशन हो रहा है. नहीं करना चाहिए हमें. You should eat your food quietly,
try to keep the TV off around that time, because if you switch off the TV, you are actually absorbing the vibration of the food. Or when you are absorbing the vibration of the food, you should not be absorbing the TV and the किच किच पिक पिक जो फालतू के डिस्कशंस हैं, क्योंकि उससे आपका वेलबींग एनर्जेटिक लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत जल्दी बिगड़ेगा. आप कभी भी नोटिस करना कि आप अगर कुछ एफर्मेशन बोल के या थैंक यू बोल के पानी पीते हो, तो आपको अगर ये रूटीन में करते हो तो आपको ज़्यादा अच्छा फील होगा, इसके बजाय कि आप गुस्से में आओ, तिर करते हुए आओ और आके पानी का गिलास भी और धम धम धम. यू विल नॉट फील गुड अबाउट इट. ऑलवेज बी रिलैक्स्ड when you eat or drink something, because this food that you eat or the water that you drink, it nurtures you, it protects you, it builds up your immunity, and also it helps you to survive better on this earth. ठीक है. तो हमें एक्चुअली करना क्या है जब हम खाना खाना शुरू करते हैं या हम जब पानी पीते हैं? एक बात तो अपनी एनर्जी को हमने फोकस करना है, हमने माइंडफुल होना है कि हमें कितना खाना है और कितना नहीं खाना है. सेकेंडली, हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने फूड को हमने ब्लेस करना है और उसके बाद ही हमने फूड को कंज्यूम करना है. हमें थैंक यू वर्ड बोलना है, और सिर्फ फूड के लिए थैंक यू नहीं बोलना. ऑलवेज रिमेंबर, कभी दिन में बैठ के सोचना उस चेन के बारे में जहाँ से खाना की प्रोडक्शन शुरू होती है. It goes very far off from the seeds that were planted, the farmer's life, who grows the food, who nurtures the crop like his own child, harvests it, sends it to the market. Now, once it's in the market, the crop is sold and it reaches the shops. आपके पास fresh fruits, vegetables रोज आती हैं different shops के through. वो shopkeeper जो आपके लिए सब कुछ available कराता है. फिर घर में आके अगर आप खाना बनाते हो, या the lady of the house who cooks the food for you, or if you have a servant or a maid who cooks food for you, you have to be thankful for every bit of it. The distribution aspect of the food, the transportation, how it reaches you from far and wide through the villages, the dairy farmers जो आपके लिए milk etc collect करके mother dairy तक या country delight या जो भी आप brand use करते हैं उस तक available कराते हैं. Fisheries, फिर अलग अलग तरह की cattle and tea growers, आपकी beverages, किस तरह से वो supermarkets जो उन सबको इकट्ठा करके आप तक लेके आते हैं. Services like nowadays I would say like Blinkit and Big Basket and or Amazon and all, who are making all these things available to you at the touch of a button. So there's an enormous activity that goes on, and there's a lot of effort being put in कि आपके मुंह में अच्छी चीज जाए. So the supply stores, the supermarkets, restaurants and cafes, not everybody eats at home. तो उनके लिए क्या provision है restaurants और cafe का या food supply का? You have to be grateful for all of that. You have to be grateful for the soil that was good enough कि उसमें खाना उग सका. फिर उसके बाद fertilizer और nutrients जो उसके अंदर गए, पानी का बहुत बड़ा रोल है irrigation में. तो ये सब हमको ध्यान में रखना है. अगर हम इन चीज़ों को थैंक यू बोल के खाना खाते हैं, एटलीस्ट दिन में एक बार इस चीज़ को अपने मन में ज़रूर याद कीजिए, और बाकी के टाइम आप जब भी खाते हैं अपने फूड को ब्लेस करके खाइए. नाउ आई विल कम टू अनदर एस्पेक्ट ऑफ this lesson. I discussed food right now. Now I will discuss water. Water, आप सबको पता है, is an indispensable part of our lives. हम बचपन से ये लाइन पढ़ते आ रहे हैं that 70% of our body is water. Isn't it? 70% is water. थोड़ी सी भी पानी की अगर कमी आपके बॉडी में हो जाती है, उसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं. उस दिन आपसे उठा नहीं जाता. You feel very weak. You run to the doctor. Isn't it? So water plays such an important role to grow food, to manage your household work. You drink water. You
irrigate your crops from it, you clean your spaces with it, washing, maintaining gardens and whatnot. वाटर का रोल, एक दिन भी अगर आपके घर में पानी ना आए, you can very well imagine कि क्या हाल होता है उस दिन. You're running around pillar to post for water. Alright, so it's very important to say the magic words for water whenever you drink. Also, I would say if you want to drink half a glass of water, take only half a glass. Don't put in a full glass, drink half and then throw half of it. It's not done. Same goes with the food. Don't waste food and water. So if there is no food and water, you can't be alive beyond a certain time. Thus, if we eat food and water and pay gratitude towards it, it's very important that you say it from all your heart. Don't make it mechanical. Think about how certain food items are reaching you, how it was converted from a raw food material into cooked food, how it will be absorbed in your body and give you the necessary energy, and your body will function. So it is much more than just eating food. There is a big link that you need to understand. So blessing your food and water at any point of time actually also purifies it. तभी हम देखते हैं कि पंडित जी जब भी घर आते हैं या पुराने ज़माने के जो लोग थे वो फूड एंड वाटर के आगे हमेशा हाथ जोड़ के थाली के आगे उसके बाद ही वो खाना कंज्यूम करते थे और खाना खा के भी वो हाथ जोड़ के ही खड़े होते थे. तो एक्चुअली क्वांटम फिजिक्स में भी ये बोला गया है कि अगर आप फूड एंड वाटर को ब्लेस करते हैं या किसी भी चीज़ को ब्लेस करते हैं, डॉक्टर ह्यूलन की भी थ्योरी है, हमने ये पढ़ी है होपोनोपोनो की चैप्टर्स में कि बहुत सारे ग्लासेस ऑफ वाटर उन्होंने लिए और किसी को आई लव यू बोला रोज़, किसी पानी के ग्लास को उन्होंने आई ब्लेस यू बोला, किसी को उन्होंने आई हेट यू बोला, किसी को उन्होंने और अनकाइंड वर्ड्स बोले, किसी को और अच्छे अच्छे काइंड वर्ड्स बोले. तो इससे क्या हुआ, बाद में उन्होंने एनर्जेटिक स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट वाटर ग्लासेस को स्टडी करा कि जिसको आई लव यू बोला था वो कैसा दिख रहा था, जिसको आई ब्लेस यू बोला था वो कैसा दिख रहा था, जिसको आई हेट यू बोला था वो कैसा दिख रहा था. तो तीनों के एनर्जेटिक स्ट्रक्चर्स जो थे बिल्कुल अलग थे, बिल्कुल ही अलग थे. जिसको आई लव यू बोला था, जिसको आई ब्लेस यू बोला था, उसका एनर्जेटिक स्ट्रक्चर वाज लाइक क्रिस्टलाइन, ब्यूटिफुल लाइक अ रोज, और जिसको आई ब्लेस यू बोला था वो सारा ऐसे बिखरा बिखरा सा एनर्जेटिक स्ट्रक्चर था. आई हैव सीन एंड स्टडीड अबाउट दिस इन ग्रेट डिटेल इन माई लर्निंग प्रोसेस फॉर होपोनोपोनो एडवांस लेवल. तो उनका दिस इज़ एक्चुअल रियलिटी कि जब आप फूड को ब्लेस करते हो या पानी को ब्लेस करते हो तो आपके खाने का और ड्रिंकिंग वाटर का या किसी भी चीज़ का जो खाते हो उसका एनर्जेटिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और वो आपके वेल बीइंग में बहुत बहुत पॉजिटिवली उसको अफेक्ट करता है. इट विल ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन योर वेल बीइंग. ऑलराइट, तभी कहते हैं कि कभी भी अगर घर की लेडी खाना बना रही है या कोई भी इंसान खाना बना रहा है, बुरे मन से आप खाना मत बनाइए, क्योंकि वो एंगर की वाइब्रेशंस, वो फ्रस्ट्रेशन की वाइब्रेशंस अंदर ट्रैवल होंगी एंड इट विल नॉट कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द वेल बीइंग. हम आपको यहाँ ग्रैटिट्यूड बोलना सिखा रहे हैं और अगर आप एंगर क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि ताकि ग्रैटिट्यूड की वाइब्रेशंस उसमें ट्रैवल हों. और जब आप खाना बनाते टाइम ही आप उसमें एंगर और फ्रस्ट्रेशन डाल रहे हो तो उसका एनर्जेटिक स्ट्रक्चर कैसा होगा? क्या वो वेलबींग में कंट्रीब्यूट करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा. सो आपने बेसिकली करना क्या है? आपने बेसिकली ये करना है, खाना अपने सामने रखा, 2 सेकेंड फोकस ऑन द फूड, क्लोज योर आइज and say thank you, thank you, thank you, and imagine there is a magic wand in your hand which is sprinkling magic dust. तो जब ये magic sprinkles, magic dust जिसको हम बोलते हैं वो sprinkle होती है, it is a proven fact that it instantly purifies everything it touches. अगर लाइफ में कोई भी, फूड एंड वाटर तो एक एग्जाम्पल है, लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम के बारे में सोच के उस पर मैजिक डस्ट अगर डालेंगे तो मैजिक डस्ट इंस्टेंटली उन प्रॉब्लम्स पे सॉल्यूशंस की तरफ काम करना शुरू होगी, उसकी एनर्जीज बदल देगी. सो इफ यू
basically do this every day. It will change the vibration of the food you eat. Your health will become better, you will become happier and more content in life. Things will start working better, क्योंकि आप जिस तरह का खाना खाओगे, कहते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो आप जब ग्रैटिट्यूड से और एफर्मेशन से फिल करके उसको फूड एंड वाटर को कंज्यूम करोगे, तो आपका एनर्जी जो है लाइफ की बेटर हो जाएगी। यू विल बी मोर कंटेंट, मोर पॉजिटिव, और आपकी वाणी में पावर आएगी। आप अच्छा बोलोगे, जो भी अच्छा बोलोगे वो सत्य हो जाएगा, सत्य वचन। तो आपकी वाणी मीठी हो जाएगी। आप जो भी बोलोगे वो मैनिफेस्ट होगा, आपकी बात में ताकत आएगी। आप किसी के आगे से कुछ बोलोगे, अच्छा पॉइंट रखोगे, कभी कोई काटेगा नहीं। सो दिस इज द वैल्यू एंड पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड एफर्मेशंस व्हेन यू ब्लेस योर फूड एंड वाटर। लेकिन एक पॉइंट है, अगर किसी दिन बाय चांस जल्दीबाजी में आप भूल गए तो क्या? तो आपने उस पॉइंट के बारे में जब भी आपको ध्यान है, ओह मैं दोपहर का ग्रैटिट्यूड करना खाने का भूल गई, थिंक अबाउट द फूड व्हेन यू वर सिटिंग देयर एंड ईटिंग, and bless your food and that moment when you were eating, कि thank you God वो खाना मुझे मिला, I bless it, and sprinkle some magic dust on it, envision, वो काम आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको करना है मल्टीपल टाइम्स। जब भी आप खाओगे थैंक यू बोल के खाना है। कुछ भी खाओ और कुछ भी पानी पियो तो थैंक यू बोल के पीना है। सो दिस इज द मैजिकल इंग्रेडिएंट, द ग्रैटिट्यूड पार्ट इन योर फूड एंड वाटर। See the changes, see the magic. I am so sure, and I can reassure you that it will change your life for good. बस एक ही बात रिपीट करूँगी, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। ग्रैटिट्यूड ऐड कीजिए और मज़ा देखिए, मैजिकल योर लाइफ विल बिकम। हर हर महादेव।